Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to JIV CIV Prep. Guys, in this particular session, we are going to talk around Forex market. Okay. Basically, the name of the topic is Forex arithmetic. There is nothing like arithmetic. This is a very basic one. Okay. But it is very important because dual benefits are associated with this particular topic as well. So you'll see the same topic or same content in your I and IFS as well. So दो subject जहाँ पे ये आपको help करने वाला है, right? So I hope you guys are following these particular classes on regular basis. So we already done with our fundamental classes, foundation classes of AFM. So now we are practicing unit-wise MCQs and case studies. So in module C, we already done with financial management, ratio analysis, and calculation of interest and annuities, as well as calculation of YTM, which is something related to bonds. Now, in this particular session, we are going to talk about our unit number 23, which is Forex arithmetic, foreign exchange market. Okay. So, see, if you'll see the question, the major areas which generally examiner pick from this particular unit, that is conceptual, and it is something around the features of forex market, factor determining foreign exchange rate, cross rate, value rate concept, or Indian forex market. So these are the areas. Arithmetic is part of this particular bit. ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने लास्ट में आपका जैसे how we calculate forward rate in case of premium as well as in discount. So that is the one. But if you'll come to the CIB syllabus, so CIB के अंदर there is one subject called BFM, Bank Financial Management, and the very first unit of very first module, which is forex business and the exchange rate, that is the name of the topic. तो वहां पे आपको इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज मिलेंगे. सो द पॉइंट इज जस्ट वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा दोनों सब्जेक्ट के अंदर, आई एन आई एफ एस एज वेल एज ए एफ एम. एंड सी आई बी के फर्स्ट बी एफ एम के पहले यूनिट में आपको ये कहीं ना कहीं फाउंडेशन बना करके देगा. ठीक है. So let's have a look about the course content. So we have fundamental of foreign exchange, Indian forex market, direct and indirect quotation, basic exchange rate arithmetics like cross rate, chain rule, value rate. This is very important for your examination for AFM subject. Exchange rate, where we have forward point, arbitrage, calculation of forward point, premium and discount cases. Okay, so you can expect two questions for 2 marks, means overall 2 marks question. It can be 2 marks one question or 1 marks two question based on this particular unit. Now like I'm going to cover each and every subtopic of this particular one. We are going to practice more than 40 questions based on this particular one. So I'll make sure ki you will be able to score in your I and IFS as well as in AFM, or for BFM also will have a basic foundation. Okay, so let's start the discussion with very first question on your screen, guys. सबसे पहला question, each of the following is characteristics of a foreign exchange market except. तो इनमें से आपका जो फॉरेक्स मार्केट है उसके फीचर्स, आपका अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट इनएक्यूरेट और रॉन्ग. ठीक है, इनकरेक्ट. So a global market with no barriers or no specific location. ठीक है, तो nowadays like trading, we have trading platform. ठीक है, so you can access to any currency pair as well as any time. ठीक है, so like in India we have trading time is 10 to 5 p.m. In somewhere else it is like 5 p.m. to let's say आपका 2 a.m. in the morning. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग उसमें आपका. ठीक है, so that is the one 100% true. Settlement not affected by time zone horizon. This is wrong. ठीक है, so we have one risk in forex market that is called हर्स्टेड रिस्क. ठीक है, आई होप यू हर्ड अबाउट दिस वन. ठीक है, अगर आप पढ़ोगे इसको आने वाले समय में सीआईबी के अंदर. ठीक है, हर्स्टेड रिस्क क्या होता है? लाइक देयर वाज वन बैंक फ्रॉम फ्रैंकफर्ट जर्मनी जिसका नाम था हर्स्टेड बैंक. ठीक है, तो उसको सेटलमेंट करना था डॉलर में, बट ड्यूरिंग, जैसे पहले क्या होता था, सेटलमेंट का टाइम काफी ज्यादा होता था. सो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड what German central bank did, they generally liquidated that particular bank. तो बहुत सारे जो डॉलर्स के अंदर पेमेंट होने थे हर्टस्टेड के थ्रू, दे रिमेन इन पेंडिंग. सो विद दैट पर्टिकुलर केस और सिचुएशन, BCBS, BIS
Bank for International Settlement, they generally form a committee that is called Basel Committee on Banking Supervision, ठीक है, to overcome with these kind of challenges and all. So this is a problem with this particular bank. जो आपके सेटलमेंट होते हैं, जैसे हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, द सेलर इज फ्रॉम सम अदर रीजन, ठीक है, तो उसका सेटलमेंट कैन बी, वो हो सकता है कैश बेसिस पे, हो सकता है आज, या वो कल हो सकता है, या परसों हो सकता है, so that is the one, ठीक है, so it get affected. So 24-hour market, ओवर द काउंटर एज वेल एज एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है, सो यहाँ पे जो ट्रेडिंग्स आपके होते हैं, इट कैन बी ओवर द काउंटर, यूजुअली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड वी हैव एक्सचेंज आप फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस आल्सो, which generally get traded on recognized stock exchanges like NSE and BSE. Okay, so what will be our correct answer for this one? B is incorrect about this thing. So we have discussed these one. Now, highly liquid market, support a large capital in trade flows, settlement get affected, market affected by government policies and countries also, ठीक है, so the control also, ठीक है, so these are the pointers, features जो आपके मैकमिलन के बुक में मिलेंगे as it is same 100%. Next one, which of the following exchange rate forecasting technique relies on historical data and pricing pattern, ठीक है, so pricing pattern like moving average, or like we use the chart readings and all, ठीक है, so this kind of thing, so this is the kind of base, ठीक है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ हेज, तो हम क्या करते हैं, बाय हियर एंड सेल हियर, ठीक है, ऐसी जो स्ट्रेटेजीज आपकी बनती है, सो दिस इज समथिंग लिंक विद द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, सो मेजरली वी हैव टू टाइप ऑफ एनालिसिस. One is fundamental analysis, which is related to the core economic analysis, like how the balance sheet is doing of that particular economy. Balance sheet means balance of payment, okay, how the country is doing trade, or their fiscal policy, monetary policy, इन्फ्लेशन लेवल एंड ऑल, ठीक है, फंडामेंटल्स के अंदर. सो लेट्स से इफ वी आर एनालाइजिंग यूएसडी आईएनआर, ठीक है, सो यूएसडी आईएनआर का अगर आप एनालिसिस करोगे, so you have to study two economies, one is US economy, another one is Indian economy, ठीक है, तो ये दो economies का कैसा आपका performances है with different indicators. Technical analysis, basically these kind of analysis is they have a long term impact, and technical analysis they are generally based on chart reading. जैसे अगर आप, there are some certification courses in analysis also, because if you do this technical analysis, you will see there are different chart readings, you know, like Japanese candle and all, we use those particular things. So ये सब चीजें आपका वहां पे रहती है, ठीक है. Even in speculation is also part of the technical analysis, but in your book they have three major, they have specially mentioned they have separately mentioned speculation. Speculation is basically, it is based on the इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस. अगर ज्यादातर लोगों को लगता है ये आपका डॉलर स्ट्रांग होगा, तो दिल मेक बाय पोजीशन, इट विल गो अप, ठीक है, एंड ज्यादातर लोगों को लगता है डॉलर वीक होगा, रूपी स्ट्रांग होगा, दिल सेल डॉलर, सो इट विल कम डाउन, ठीक है, इस तरीके के जो आपके एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है. सो टेक्निकल एनालिसिस जहां पे मूविंग एवरेज, वेटेड एवरेज, ऐसे बहुत सारे, या चार्ट रीडिंग से अदर्स जिनका हम लोग हेल्प लेते हैं. नेक्स्ट वन, when a central bank buy its own currency in the market to stabilize its value, what is likely impact on the foreign exchange reserve team? तो हम क्या करते हैं, while we generally issue currency, जैसे RBI आपका इशू करता है करेंसी, so they make रिजर्व अगेंस्ट दोज पर्टिकुलर वन, ठीक है, तो आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, 200 करोड़ के स्लॉट में आपका जो होता है, ठीक है, 100 एंड 135 करोड़ आपका गोल्ड, समथिंग, और 115 करोड़ इज गोल्ड एंड 85 इज अदर्स, ठीक है, इस तरीके से. सो नाउ दे आर बाइंग बैक, सो इट विल रिड्यूस द इकोनॉमिक रिजर्व, ठीक है, तो क्या होगा, आपका रिजर्व विल रिड्यूस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है. सो बाइंग इट्स ओन करेंसी इन्वॉल्व सेलिंग फॉरेन करेंसी, leading to a decrease in the central bank's foreign exchange reserve, right? Next one, a currency if cheaper in forward or future value date is said to be in discount, बिल्कुल सही. In case of direct quotation, the discount is deducted from. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, प्लीज पे योर अटेंशन. देखो क्या क्या होता है, जैसे let's say USD INR, ठीक है, so let's take an example of USD INR, ठीक है, and the current price, the spot rate is suppose that 84.1020, ठीक है, तो ये आपका स्पॉट रेट है. अब ये जो कोटेशन आपकी होती है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, सो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ बाय रेट, ठीक है, अगर इसको बायर खरीदना चाहता है कितने में, आपका
84.10 में, ठीक है, एंड द सेल रेट इज इन दिस पर्टिकुलर केस सेल रेट इज 84.20, ठीक है. Buyer is always want to buy at lower price and seller always want to sell it at higher price, ठीक है. तो ये आपका करंट प्राइस है, ठीक है. नाउ लेट्स से आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, इसका जो 3 मंथ्स का आपका फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस है कितना. लेट्स से इट इज इफ इट इज इन डिस्काउंट, पहले इनका केस को ले लेते हैं, विल टॉक अबाउट द प्रीमियम, ठीक है. तो लेट्स से इट इज आपका फॉरवर्ड रेट इज सपोज दैट 83.5060, ठीक है. तो इसका जो फॉरवर्ड रेट है 3 महीने बाद का वो है. अब डिस्काउंट में कब होगा, व्हेन डिस्काउंट का केस, दिस इज द केस ऑफ डिस्काउंट, ठीक है. डिस्काउंट का केस कब होता है आपका, ठीक है, व्हेन योर फॉरवर्ड रेट इज लेस देन योर स्पॉट रेट, ठीक है. दिस इज द केस ऑफ डिस्काउंट, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द केस ऑफ डिस्काउंट. अब क्वेश्चन क्या है, इन द केस ऑफ डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब $1 इक्वल टू इतना INR. दिस इज द कोटेशन विच आई हैव मेंशन हियर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोटेशन. अब देखो इसमें क्या होगा, देखो अब उसने जैसे हमारा जो बाय रेट है यहाँ पे कितना है 84.10, यहाँ पे हमारा जो बाय रेट है दैट इज 83.50, ठीक है. तो दैट मीन्स आपका बाइंग रेट में आपका डिस्काउंट लगा है, ठीक है, बाइंग रेट में आपका है. इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज योर सेल रेट 83.60, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेल रेट कितना है 84.20. तो आपका जो सेल रेट है वो भी डिस्काउंट हुआ है, दैट इज दिस. सो आपका आंसर क्या होगा, बोथ बाइंग एंड सेलिंग रेट, दोनों में ही इसका इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा. सिमिलरली इन केस ऑफ आपका प्रीमियम ऑल्सो, प्रीमियम कब होगा, ठीक है. लेट्स से दिस इज द स्पॉट रेट एंड द 3 मंथ लेटर, 3 महीने बाद का जो प्राइस है, ठीक है. तो 3 मंथ लेटर प्राइसेस आपका कितना है स्पॉट रेट 84.10, लेट्स से इट इज 84.8090, ठीक है. 3 महीने बाद का जो प्राइस आपका दिख रहा है वो कितना दिख रहा है आपका 84.8090, ठीक है. दैट मीन्स प्रीमियम का सिचुएशन कब होगा, ठीक है, कब आपका करेंसी प्रीमियम में होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट है. प्लीज अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, ध्यान रखें, ठीक है. सो व्हेन योर फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर रेट इज ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट, सो करेंसी सेट टू बी इन प्रीमियम, ठीक है. अब यहाँ पे प्रीमियम के केस में भी ये जो प्रीमियम होगा वो ऐड होगा इन बोथ द केसेस. जैसे व्हाट इज द बाय रेट इन दिस पर्टिकुलर केस 84.80 एंड यहाँ पे कितना था आपका 84.10, ठीक है. दिस वाज द बाय रेट. सेल रेट आपका कितना है, व्हाट इज द सेल रेट आपका 84.90 एंड वहां पे सेल रेट कितना था आपका 84.24, ठीक है. सो इन बोथ द केसेस अगर करेंसी डिस्काउंट में है या प्रीमियम में तो उसका इंपैक्ट आपका बाइंग एंड सेलिंग रेट दोनों पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा. दैट वी जनरली प्रूव इन दिस विद दीज पर्टिकुलर एग्जांपल्स. अंडरस्टूड, समझ में आया. तो क्या होगा आपका आंसर, बोथ होगा. ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी है. कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं आपको हमेशा पुश करता हूं टुवर्ड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट अगर आपने बना लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है. नेक्स्ट वन, which organization was formed to take over the functions of the exchange bank association and regulate the dealing of and between authorized dealer, forex broker and various other organizations dealing in foreign exchange. I hope you guys know the role of IBA, ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन. तो इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या करता है, आपके पास IBA की मेंबरशिप है, ठीक है. सो इट इज अ मीडिएटर बिटवीन बैंक, ठीक है, जैसे हमारे जो बैंक हैं, ठीक है, बैंक एंड आपका RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI एंड आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. सो लेट्स से इफ बैंकर दे हैव सम कंसर्न, so they'll reach out to IBA. IBA will pass on their concern to RBI and Government of India कि these are the problems which we are facing, kindly change this particular. ऐसा आपका, ठीक है. Similarly, in case of forex business also, we have one institution that is called Foreign Exchange Dealers Association of India. 1958 was the year when RBI, with the approval of RBI, we generally formed this particular institution, ठीक है. तो क्या होगा आपका आंसर, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है. जैसे अब इसका काम क्या होता है, जो फॉरेक्स डीलर हैं उनको ट्रेन करना, या अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आपका डिस्प्यूट को सॉल्व करना दो ट्रेडर के बीच में,
या फिर आपका जो नए गाइडलाइंस रेगुलेशन आपका बनाना, सो दैट इज जैसे आईबीए काम करता है वैसे ये भी काम करता है, ठीक है। देयर वॉज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इन प्रीवियस एग्जामिनेशन, बट इट वॉज इन आई एन आई एफ एस, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों जगह आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया is a self-regulatory organization founded in 1958 with the approval of RBI to take over the functions previously performed by this. Okay? So these are the members. They are generally part of this particular one, and they generally try to build collaboration among these different members. Next one, which of the following statement about forex risk इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो रिस्क होता है उसके संबंध में आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन रिस्क अराइज ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस अफेक्टिंग कैश फ्लो, इट कैन बी, ठीक है, दिस इज ट्रू, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ट्रांजेक्शन रिस्क इंपैक्ट द वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एसेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। इकोनॉमिक रिस्क ओनली अफेक्ट शॉर्ट टर्म, नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इकोनॉमिक रिस्क क्या होगा, दे दिस इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड दे हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और ब्रॉडर इम्पैक्ट, तो दिस इज इनकरेक्ट। hedging can be mitigate transaction risk but not eliminated completely, again true, ठीक है, this is also true, ठीक है। तो statement C is the right answer for this particular one. So basically the economic risk, they have a broader impact or long term impact on the forex market, ठीक है। Next one, speculative activity in forex market can have which of the following effect on exchange rate? Speculation is kind of gambling. It is as similar as that. Let's say there is a team match between two team, so we are predicting कि this team will win, ठीक है, this team will win this particular match, ठीक है। तो हम ऐसा prediction करते हैं, आपका वैसे ही speculation, like let's say if you are investing in an IPO of a XYZ company, ठीक है, किसी कंपनी का IPO आ रहा है, तो आपको लगता है कि like you are bullish about that particular company's shares, तो आप उसमें अपनी पोजीशन बना रहे होते, ठीक है। तो जो फ्यूचर क्या होगा, that is kind of uncertain, but we are making position based on our speculation, okay, जो भी हमने एनालिसिस किया हुआ था आपका, so that is the one. So similarly in forex also they can have which of the following effect, तो ये आपका ड्राइव कर सकते हैं मार्केट को, always stabilize the market by correcting misalignment, no, amplify volatility due to herd behavior and market sentiment, बिल्कुल, ठीक है। herd behavior is like let's say 10 people, like जैसे there are 100 investors, 90 are saying कि this will go up, मतलब जैसे हर्षद मेहता ने माहौल बनाया कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सो दैट इज हर्ड बिहेवियर, ठीक है। मार्केट सेंटिमेंट्स, आपका मार्केट बढ़ रहा है मतलब बुलिश ट्रेंड में है, सो एवरीबडी हैव अ थॉट कि हाँ मार्केट बढ़ रहा है और बढ़ेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। हैज नो इम्पैक्ट, दे हैव इम्पैक्ट, ठीक है। एलिमिनेट इंटर, नो, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो स्पेक्युलेटिव ट्रेडर ऑफन एम्प्लीफाई द मार्केट वॉलेटिलिटी as trader react to market sentiment and short term movements rather than the fundamentals, इसीलिए मैंने बोला था speculation generally categorized under the technical analysis, ठीक है, बट आपके बुक में इसका अलग से नाम दिया गया, ठीक है। what is the relationship between a country's trade balance and exchange rate, तो आप एक्सचेंज रेट बोलो या फिर वहां की करेंसी बोलो, तो अगर हमारा ट्रेड बैलेंस सरप्लस होगा, इफ इट विल बी इन सरप्लस, ठीक है, या आपका पॉजिटिव में होगा, सो आर वैल्यू ऑफ रूपी विल इंक्रीज, हाउ, अगर हमारा देखो सिंपली सरप्लस में होने का मतलब आर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, मतलब अगर हम लोग हमारे वहां से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, दे हैव टू मेक पेमेंट इन रूपी एंड दे इट विल क्रिएट अ डिमांड फॉर रूपी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो अ ट्रेड डेफिसिट लीड टू करेंसी एप्रिसिएशन, नो, a trade surplus export depreciation pressure on the currency, no, both are similar. A trade deficit caused depreciation due to higher demand for foreign currency, exchange rate independent, sorry, a trade deficit caused depreciation due to higher डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका सी होगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट इंडिपेंडेंट, नो, ठीक है, दे हैव इम्पैक्ट, तो फंडामेंटल एनालिसिस का क्वेश्चन था जहां से आपको इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट की वैल्यू समझ में आ रही है, क्यों मैं इतना आपके पीछे बढ़ा रहता हूँ। हाउ डज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस exchange rate in the forex market, ठीक है, it again it is a part of fundamental analysis, ठीक है। why political stability is necessary, देखो क्या होता है, जैसे
टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी XYZ कंट्री, जैसे लेट्स से देयर इज अ कंट्री एक्स जहाँ पे क्या हो रहा है, हर 2 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, ठीक है, कभी आपका 2 साल में, कभी 1 साल में। और एक कंट्री वाई है जहाँ पे पिछले आपका लेट्स से 30 साल से सेम गवर्नमेंट आपका रूल कर रही है, ठीक है। सो नाउ इन दिस वन एज अ बिजनेसमैन व्हाट विल बी आवर आइडिया, कि देखो क्या होता है ना, जैसे हम बिजनेस करने जाते हैं, सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द पॉलिसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, हमने समझा, अकॉर्डिंगली वी प्लान आवर बिजनेस थिंग, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, अभी गवर्नमेंट ए थी, फिर गवर्नमेंट बी बना, इनकी अलग पॉलिसी, इनकी अलग पॉलिसी, इनकी अलग पॉलिसी, बट यहाँ पे एक सिमिलर टाइप ऑफ पॉलिसीज होंगी, सो इट विल help businesses to understand, so that will lead to more cash flow in that particular country y में आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा तो रुपए की डिमांड होगी, that will lead to the economic growth as well as the value of currency, ठीक है। so in general आपका, so political stable countries experience currency depreciation नहीं appreciation, political instability increase currency demand due to speculative opportunities, no. Political stability attract foreign investment leading to the currency appreciation. Exchange rate are minimum political factor, no, ठीक है, they have an impact, ठीक है। तो क्या होगा आपका सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ डू क्रॉस रेट फैसिलिटेट ट्राइंगुलर आर्बिट्राज, ठीक है। जैसे क्रॉस रेट आपका क्या होता है, आई होप याद है आप लोगों को, ठीक है। सो लेट्स से देयर आर टू करेंसीज, थ्री करेंसी पेयर, लेट्स से आपका डॉलर एंड रूपी एंड आपका डॉलर एंड एक्स, करेंसी एक्स, ठीक है। तो लेट्स से इनके बीच में डायरेक्ट कोटेशन है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज सपोज दैट देयर इज नो डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन करेंसी एक्स एंड रूपी। अगर हमें ये डिफाइन करना है कि हाउ मेनी एक्स इज इक्वल टू 1 रुपी और वाइस वर्सा, 1x इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, ऐसा अगर हमें निकालना है, सो व्हाट वी विल डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, वी विल अप्लाई द चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेट। सो फर्स्ट फ्रॉम दिस रुपी, ये जो रुपी हमारे पास है, इससे हम डॉलर परचेज करेंगे एंड सेम डॉलर वी विल डिस्पोज ऑफ अगेंस्ट दिस करेंसी एक्स, ठीक है। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, बेसिकली व्हाट चेन रूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका चेन रूल। व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल, चेन रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉलर और आपका ये जो सॉरी जो रुपी है और आपका जो करेंसी एक्स है, इनके बीच में एक चेन का काम कर रहा है, कौन, आपका डॉलर, इनको लिंक करने में, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकली कैसे ये होता है, ठीक है। सो आप कैसे करेंगे, लेट्स से वी हैव 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर से सॉरी 1 लाख रुपी, विद दिस 1 लाख रुपी वी गॉट सपोज दैट $10,000, विद दिस $10,000 वी, अब इसका कन्वर्जन ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें मिला सपोज दैट आपका 1000, आप 1000x आपका, इस तरीके से कन्वर्जन। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेट एंड टू कैलकुलेट क्रॉस रेट वी जनरली यूज चेन रूल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चेन रूल, जो मतलब डॉलर एज अ बेस करेंसी वी आर यूजिंग एंड वी आर कन्वर्टिंग करेंसी एक्स इनटू रुपी बाय यूजिंग डॉलर, ठीक है। तो आप आपके ऑप्शंस पे आ जाते हैं, ठीक है। बाय इंश्योरिंग द बिड एंड आस्क स्प्रेड रिमेन कांस्टेंट, नहीं, द आइडेंटिफाइंग प्राइस discrepancies between three currencies, it can be, ठीक है, by stabilizing exchange rate in floating, by eliminating differences between nominal, no, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्राइज क्या होता है, कि इन तीन का आर्बिट्राइज का बेसिक ट्राइंगुलर, पहले आपको ये आर्बिट्राइज का मीनिंग समझना होगा, ठीक है। ट्राइंगुलर मीन्स जैसे दो तरीके का आर्बिट्राइज हो सकते हैं, एक तो दो करेंसीज के बीच में, जैसे यूएसडी आईएनआर जो करेंसी पेयर है, मार्केट ए में वो मिल रहा है $1 इक्वल टू 80 रुपीज, मार्केट बी में मिल रहा है आपका $1 इक्वल टू 81 रुपीज। सो व्हाट वी विल डू, आपका वी विल बाय इन मार्केट ए एंड वी विल सेल इन मार्केट बी। सो बाइंग इन a market where we have low prices and selling in another, this strategy is generally known as arbitrage. It is as simple as that, जैसे शिमला में एप्पल सस्ते मिलते हैं, 50 रुपए किलो हमने खरीदा एंड वी सेल देम आउट इन दिल्ली मार्केट फॉर 150 रुपीज। तो ये जो 100 रुपए का रिस्क फ्री प्रॉफिट आपने अर्न किया ना, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। सो बाइंग इन वन मार्केट, सेलिंग इन अनदर। ट्रायंगुलर में आपका तीन करेंसी पेयर के बीच का जो सिचुएशन होगा, मतलब जो डिफरेंसेस होंगे इन डिफरेंट डिफरेंट currencies, so we make that particular benefit, ठीक है। So B will be right answer for this particular one. Next one, under packed exchange rate system, how the cross rate typically maintain, packed rate आपका जैसे होता है ना, पहले होता था ये जनरली, अभी बहुत कम होता है, ठीक है। So where rates are generally fixed by the central bank, जैसे आपका let's say USD INR, आपका USD INR spot rate is 83
8090, ठीक है, सपोज दैट दिस इज द रेट। अब ये ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा, इसकी जो बाउंड्रीज हैं दीज आर जनरली सेट बाय आरबीआई या वहां के सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। सो थ्रू अ मार्केट ड्रिवन एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, नो, ये आपका मार्केट फैक्टर्स होता है, ठीक है। बाय सेंट्रल बैंक इंटरवीनिंग इन द स्पॉट मार्केट फॉर ऑल पेयर्स बाय इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी विद द पैक करेंसी एंड अदर करेंसी बाय, तो ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर, सॉरी। ओके, क्या था क्वेश्चन आपका, पैग एक्सचेंज रेट सिस्टम, द क्रॉस रेट typically by ensuring consistency with the peg currency and, अच्छा, okay, this is peg, what is peg rate, and peg exchange is basically by ensuring consistency with peg currency and other currency pair, ठीक है। तो जैसे आपका ये करेंसी और किसी दूसरे के साथ आपका हम लोग मतलब दैट इज जनरली डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक इन अ पैग सिस्टम, क्रॉस रेट आर derived from the peg currency rate against the other currencies, ensuring consistent exchange relationship, as I mentioned here, like it is go, जैसे $1 के बदले में इतना अप हो सकता है, इतना डाउन हो सकता है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ लाइक $1 के लिए इतना मिलेगा, फिक्स्ड आपका कि $1 विल, अगर हम उसको INR में एक्सचेंज करना होगा तो दिस विल बी द प्राइस, ठीक है। A company has received 5 lakh euros due in 3 months, ठीक है। कंपनी को आपका 3 months के अंदर they are going to receive $5 lakh, ठीक है, 5 lakh euros, ठीक है। The current spot rate of euro INR is 88, ठीक है। The company expect the INR to depreciate, आने वाले समय में रुपये क्या हो सकता है आपका depreciate कर सकता है, ठीक है। So which hedging strategy would be most effective in this particular one? तो क्या करना चाहिए इनको, they should buy call option of euro, ठीक है। So or a future of euro, ठीक है, they have two options, they can buy future of euro or they can buy call option of euro, ठीक है। So buy call option of euro will be right answer for this particular one। देखो क्या हो रहा है, क्योंकि INR डेप्रिशिएट होगा मतलब क्या है, आपका यूरो स्ट्रांग होगा। तो अगर हमें ये पता कि यूरो ऊपर जाएगा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल बाय यूरो, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसका, आपका आप उसके ऑप्शन परचेज कर लो या उसका फ्यूचर परचेज कर लो, जिससे बाय पेइंग मिनिमम मार्जिन सो यू कैन हैव मैक्सिमम बेनिफिट विद दैट पर्टिकुलर। नेक्स्ट वन, which of the following is incorrect about the currency future contract, incorrect about the currency future contract, ठीक है। Future traded on exchange, this is true. Future contract are standardized, this is also true, ठीक है। Future require an upfront margin payment, this is also true. Future can be customized, no. To specific amount and date, no. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनरली क्या होते हैं, दीज आर गेट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको डेरिवेटिव के नाम से एक यूनिट पढ़ाया है, इसी मॉड्यूल का आखिरी यूनिट है, ठीक है। एंड दैट इज, अगर आप वो देख लेंगे ना 1 hour 40 minute वीडियो इज देयर, यू विल गेट क्लियर कट फंडामेंटल्स अबाउट द डेरिवेटिव्स, ठीक है, दैट आई विल मेक श्योर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो आपके JIB या इवन CIB लेवल तक भी जो आपको हेल्प करके जाएंगी, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, दैट मीन्स the features about these particular contract get decided by the exchange itself, exchange like NSE BSE, ठीक है। So their lot size and all, ठीक है, they have price transparency, they are highly liquid. Forward contract, forward and swaps are mostly private contract, so things about those particular contract can be decided by the parties involved in those particular contract। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ बैंक और बिजनेस के बीच में, सो दे कैन डिसाइड देयर ओन टर्म एंड कंडीशन, देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से काउंटर पार्टी रिस्क इज अवेलेबल इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस देयर इज नो काउंटर पार्टी बिकॉज एक्सचेंज स्टैंड द गारंटी एंड इवन दे like once we enter into a future contract, this exchange will ask you to deposit some margin, that is let's say 5% or 10%, and they'll ask you to maintain that margin on M2M basis, mark to market basis, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, if transaction take place immediately on T+0, so it is called, अब now this is very important, ठीक है। ये क्वेश्चन ना मतलब एग्जामिनर का IIBF का फेवरेट क्वेश्चन है, I saw this question लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, 90% टाइम, मतलब 10 बार एग्जाम हुआ तो 9 बार उसने ये पूछा। तो द कॉन्सेप्ट इज जनरली नोन एज वैल्यू डेट, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी वैसे, ठीक है, हमने जब कॉन्सेप्ट क्लासेस की हैं। सो वैल्यू डेट, सो वैल्यू डेट इज एक्चुअली इक्वल टू सेटलमेंट डेट। तो एक चीज अभी हमने कुछ देर पहले भी आपका बात किया था, ठीक है, कि ड्यू टू टाइम जोन हॉरिजन देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ ट्रेड एंड डेट ऑफ सेटलमेंट। जैसे देयर इज अ ट्रेड
आपका एक ट्रेड आपका हुआ, ठीक है, ऑन लेट्स से आपका 1st of February 2025, ठीक है, द डेट ऑफ ट्रेड वाज दिस, ठीक है, सो डेट ऑफ ट्रेड between two parties which took place on 1st of February 2025. Now the settlement date, value date means settlement date, ठीक है, so let's say if it gets settled, अगर इसका settlement होता है कब, आपका 1st February 25 itself, ठीक है, that means it is called T plus 0, ठीक है, T plus 0, so it is known as cash और it is called ready और it is called TOD, ठीक है, तो इसकी ये जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. इफ इट गेट सेटल ऑन 2nd February, ठीक है, अगर इसका जो सेटलमेंट है आपका वो 2nd February को होता है, अज्यूमिंग देयर इज नो नेशनल हॉलीडे और देयर इज नो सैटरडे संडे, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना होगा. सो इट इज नोन एज T+1 एंड इट इज कॉल्ड TOM, टुमारो, ठीक है, इसको हम लोग टॉम केस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. इफ द सेटलमेंट टुक प्लेस ऑन let's say 3rd February, again assuming there is no holiday and there is no Saturday Sunday, ठीक है, so this is known as T+2 and it is called spot, ठीक है, इस ट्रेड को हम वैल्यू डेट में क्या बोलेंगे, आपका spot. अब now the final one is if settlement took place any date after spot date, ठीक है, अगर आपका सेटलमेंट स्पॉट डेट के बाद कभी भी, assuming like 15th of April, ठीक है, 15 अप्रैल 2025, so this kind of settlement is generally known as forward, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका फॉरवर्ड के नाम से आपका जानते हैं, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. अगर आपने ये समझ लिया तो प्रोबेबिलिटी है 90% की हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स आपका फिक्स है. कई बार वो डायरेक्टली पूछेगा हाफ मार्क्स, कई बार वो सिचुएशन दे देगा कि देयर इज अ party who entered into a forex trade a contract and the trade date of trade was this and it would get settled on 3rd February, ठीक है. So the trade type is or the value date for this one, ठीक है, so your answer will be spot trade and you'll get 1 marks or 2 marks, ठीक है. तो ऐसे आपको इसको ध्यान रखना. So if settlement took place on same day, it is cash. If it is took T+1 one working day, so आपका टर्म देन आपका स्पॉट. इफ सेटलमेंट टुक प्लेस एनी डेट आफ्टर दी स्पॉट डेट, दैट इज जनरली नोन एज फॉरवर्ड, ठीक है. तो इसीलिए हम बोलते हैं दो तरह की ट्रेड आपकी होती हैं फॉरेक्स में, आपका या तो स्पॉट ट्रेड होगी या फिर वो आपका फॉरवर्ड ट्रेड होगी, ठीक है. तो आप क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पर आइए दोबारा से, ठीक है. सो अब अगर उसने T+0 में है तो इट इज नोन एज कैश और रेडी, जिसको हम लोग आपका बोलते हैं. अंडरस्टूड, ठीक है. सो वैल्यू डेट in the forex, the value date is regarded as delivery date on which counterparties to the transaction agree to settle their respective obligation. Settlement, ये जो term है ना settlement, ये हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है आपका कि at the same time two parties or two accounts are getting affected. Buyer will get the currency or security and seller will get amount or money for that particular one, ठीक है. that is the known as settlement, ठीक है. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे भी है, the date of transaction is 1st of February 25, ठीक है, sorry 1st of January 2000 15th of January 2025, ठीक है. एंड द सेटलमेंट अगर ये सेम डे पे हो रहा है मतलब T+0, ठीक है, 15, अगर आप दिस इज योर T+1, ठीक है, अज्यूमिंग देयर इज नो हॉलीडे, ठीक है, दिस इज योर T+2, ठीक है. देन इफ इट सेटल आफ्टर एनी डेट आफ्टर दी स्पॉट डेट, सो इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड, ठीक है. तो आपका कैश, टर्म, स्पॉट एंड फॉरवर्ड, प्लीज डू रिमेंबर दीज वन, ठीक है. ये डेफिनेशन भी है, मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया है कॉन्सेप्ट में, ठीक है, प्लीज उनको स्किप मत कीजिएगा. नेक्स्ट वन, अ कंपनी इंपोर्ट रॉ मटेरियल प्राइस इन USD, ठीक है, आपका एक कंपनी जिसका जो इनवॉइस है दैट इज इन US डॉलर, ठीक है, दे आर इंपोर्टिंग, दैट मींस दे हैव टू मेक पेमेंट इन डॉलर, ठीक है. इफ INR एप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर, द कंपनी विल एक्सपीरियंस, ठीक है. तो सोचो एक कंपनी है आपका XYZ कंपनी, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है, दे हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 10,000 US डॉलर, ठीक है, आपका 10,000 रुपए US डॉलर का इनको पेमेंट करना है, इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका दे हैव टू मेक पेमेंट, ठीक है. सो एट द टाइम दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द प्राइस वाज, आपका जो स्पॉट रेट था उस दिन का ये था $1 इक्वल टू सपोज दैट 84. देन ये 3 मंथ लेटर का पेमेंट था, 3 महीने बाद का. उस दिन जब एक्चुअली में हुआ तो $1 इक्वल टू हो गया कितना, करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है, तो इट बिकम आपका 82. तो ये क्या हुआ है इनका, इंपोर्टर का क्या हो गया, इसमें फायदा हो गया, ठीक है. $2 रुपीज सॉरी
$2 पर रुपीज का बेनिफिट है, ठीक है। सो लोअर इंपोर्ट कॉस्ट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। समझ में आया सबको क्लियरली? और थोड़ा सा हाँ ना और आपका कैसा लगा सेशन, थोड़ा सा अपनी फीडबैक जरूर शेयर करा करें, ठीक है। सो लाइक इफ समथिंग नीड टू बी चेंज विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन अ मैनेज फ्लोट सिस्टम, ठीक है, मैनेज फ्लोट सिस्टम, पैक्ड मैनेज इज लाइक बेसिकली आपका जो आरबीआई के द्वारा जो चीजें होती हैं, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एक्चुअली दैट एग्जांपल वाज टू रिलेटेड टू दिस मैनेज, ठीक है। आपका जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेट्स से यूएसडी आईएनआर, ठीक है, द प्राइस इज स्पॉट रेट इज सपोज दैट 84.2030, तो अभी कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, ठीक है, पहले ये आपका दैट इज गेट डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। इंटरवेंट्स ड्यूरिंग financial crisis, regularly determine and set exchange rate, ठीक है, regularly determine and set exchange, smooth extensive volatility, हाँ, so smooth excessive volatility in the foreign exchange market, ठीक है। तो ये जनरली क्या पे होता है, जब आपका वॉलेटाइल काफी ज्यादा होता है, सो आरबीआई हु जनरली एंटर विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैनेज फ्लोट allow the exchange rate to fluctuate but involve occasional central bank interventions, ठीक है। So that, sorry, then I went wrong, ठीक है। Manage is like there is no as such cap, this is means the things the prices are generally determined by the मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, जैसे इंडिया में, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई और द सेंट्रल बैंक दे जनरली इंटरवेन, वो अपना इंटरफेरेंस करते हैं टू स्टेबलाइज दैट पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी। प्लीज डू ठीक है ना। What is the full form of LERMS? It is Liberalized Exchange Rate Management System, ठीक है। जो आपका मैनेज सिस्टम जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ओपन सिस्टम वेयर थिंग्स मींस प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई इन मार्च 1992, ठीक है। सो अच्छा, इसी के अराउंड क्वेश्चन है, तो मार्च 1992 आपका लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, तो सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, LERMS, इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज ध्यान रखिएगा, was introduced in March 1992. So as to market determine the exchange rate system, it was introduced as a step for adopting dual exchange rate. One is fixed आपका, ठीक है, which is RBI, and the another one is floating, which is decided by the market condition. तो fix में RBI intervention जहाँ पे होता है, and that is in rare cases to hold the volatility or to manage the market volatility, ठीक है। Next one, does assist in the management of foreign reserve and use the foreign currency market to reduce volatility, central bank, ठीक है। तो आपका जैसे हमारे केस में आरबीआई है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बिना वेट के, ठीक है। Which category of authorized dealer bank can handle all the current and capital account transaction? So answer will be category 1, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो क्या होता है, वी हैव 3 टाइप ऑफ ऑथराइज कैटेगरी, देन देयर इज नथिंग लाइक कैटेगरी 4, आप इसको लिख सकते हो FMMC, ठीक है, फुल फ्लेज, सॉरी FFMC, ठीक है, FFMC, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, ठीक है। तो देखो कैटेगरी 1 क्या होता है, जिसमें आपके सारे बैंक आते हैं, ठीक है, ऑल बैंक्स, जैसे जो कमर्शियल बैंक है आपका, ठीक। कैटेगरी 2 आपका जिसमें कुछ जो कोऑपरेटिव बैंक इसमें नहीं है वो यहाँ, और आरआरबीज और कुछ अपग्रेडेड एफएफएमसी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं आपके डीएफआईज, ठीक है, लाइक एक्सिम, सिडबी एंड ऑल, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी 1 बैंक है ना, दे हैव लाइक सबसे ज्यादा जो आपका ट्रांजेक्शन होते हैं फॉरेक्स के, वो करंट अकाउंट रिलेटेड हो, मतलब जैसे हमारे पर्सनल यूज के लिए जो होता है, या कैपिटल अकाउंट लाइक इन्वेस्टमेंट या अदर्स जो होते हैं, दे आर जनरली गेट हैंडल्ड बाय दीज पर्टिकुलर वन, ठीक है। इनकी लाइसेंसिंग के अंदर वो चीज आपको मिलेगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ प्राइसेस डिफरेंस इन टू डिफरेंट मार्केट फॉर अर्निंग, जैसे मैंने आपको दिया कि इन मार्केट ए आपका द प्राइस ऑफ यूएसडी आईएनआर, ठीक है, यूएसडी आईएनआर आपका मार्केट ए का प्राइस है सपोज दैट आपका 84, ठीक है, एंड मार्केट बी का प्राइस है सपोज दैट 83। सो व्हाट वी विल डू, वी विल बाय हियर एंड वी विल सेल हियर, ठीक है, दो शिमला वाले एप्पल थे वो सब, ठीक है। सो इट इज नोन एज आर्बिट्राज, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका आर्बिट्राज, ठीक है, एक फाइनेंस में स्ट्रेटेजी आपका है, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following best describe the relationship between spot and forward rate in forex market, ठीक है। तो spot and forward rate, ठीक है। in case of spot settlement is up to T+2 days, ठीक है। फॉरवर्ड आपका जो सेटलमेंट होंगे वो फ्यूचर स्पेसिफिक डेट पे होंगे, ठीक है।
सो स्पॉट रेट आर ऑलवेज हायर देन द फॉरवर्ड रेट, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो आपका प्रीमियम और डिस्काउंट का केस हो सकता है, सो वी कैन नॉट से दिस, ठीक है। फॉरवर्ड रेट आर डिटरमाइंड बाय फ्यूचर मार्केट स्पेक्यूलेशंस, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, ये भी सही है। फॉरवर्ड रेट आर डिटरमाइंड बाय फ्यूचर मार्केट स्पेक्यूलेशन, अच्छा ओके, दिस इज अ वन रीजन बट इट इज नॉट अलोन, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये आपका कई बार गड़बड़ करते हैं, ठीक है। हाँ, दिस इज 100% श्योर। प्रीमियम एंड डिस्काउंट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंशियल, क्योंकि 19 से हमारा डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको आपको बाय और सेल वाला बताया भी था स्टार्टिंग में, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट आर ऑलवेज इक्वल, नो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये इंटरेस्ट वाला मैंने आपको केस बताया था ना, हमने कंपेयर किया था कब प्रीमियम में होता, कब डिफरेंस आपका डिस्काउंट में होता है, और डिफरेंसेस कैसे होते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू अ कंट्रीज एक्सचेंज रेट इन फ्लोटिंग रेजिम, सो फ्लोटिंग रेजिम आपका है, ठीक है, व्हेन देयर इज अ persistent BOP डेफिसिट, ठीक है। अगर BOP डेफिसिट में है तो क्या होगा, द करेंसी वैल्यू विल डेप्रिशिएट, ठीक है। सो द एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट, नो इट विल डेप्रिशिएट, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने इसको अभी समझा है लॉजिकली, ठीक है। सो फंडामेंटल एनालिसिस का जो पार्ट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग करेंसी ऑप्शन ओवर फॉरवर्ड फॉर हेजिंग, ठीक है। देखो, ऑप्शंस आर एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, and in case of option you have to pay a very small amount, that is called premium. The another thing is they are highly liquid compared to फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं लोअर कॉस्ट कंपेयर टू फॉरवर्ड, मतलब इन दोनों के उसमें हम इसको, फॉरवर्ड में एक्चुअली क्या होता है वैसे, अगर हम इन कॉस्ट वाइज जाते हैं, इन केस ऑफ फॉरवर्ड वी डू नॉट हैव टू पे एनी इनिशियल मार्जिन एज वेल, ठीक है। तो ये इसके बेसिस पे हम डिसाइड नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन विद पोटेंशियल टू बेनिफिट फ्रॉम द फेवरेबल रेट मूवमेंट्स, इट कैन बी, ठीक है। गारंटी एग्जीक्यूशन नहीं, नो नीड ऑफ प्रीमियम देयर इज रिक्वायर्ड। तो प्रोटेक्शन विद द पोटेंशियल, देखो ये क्या ना, एक स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। जैसे आप अगर कभी एनालिसिस को पढ़ेंगे, स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल, देयर आर टू स्ट्रेटेजीज विच वी जनरली यूज इन ऑप्शंस, ठीक है। आप इतना ज्यादा डिटेल में मजा आएगा अभी, बट हाँ, विद टाइम्स व्हेन यू विल कम टू द CIV, आई विल बी द पर्सन जो मैं आपको उनको गाइड करूंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। बट हाँ, ये स्ट्रेटेजीज जो हमें कई बार आपका ऐसे जो बेनिफिट आपका हेजिंग के साथ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। What is the primary reason for the popularity of non-deliverable forwards in certain currencies? ठीक है, non-deliverable forwards आपका high liquidity in these currencies, restrictions on onshore convertibility of under this, absence of forward contract in market, lower cost compared to deliverable forwards, ठीक है। restrictions on onshore convertibility, popularity, ठीक है, this ए और बी में से एक आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है, बी, हाँ, restrictions on onshore convertibility of the this, so non-deliverable forwards are commonly used for currencies with restrictions on capital flow or convertibility, ठीक है। जो मतलब एक मेन पॉइंट है आपका, विच जनरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्पेशल ड्राइंग राइट SDR इन ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट। सो SDR इज अ रिजर्व एसेट ऑफ IMF, ये तो सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, हमने INIFS में इसको पढ़ा भी है, ठीक है। सो स्पेशल ड्राइंग राइट आपका इट्स अ रिजर्व एसेट ऑफ IMF, ठीक है। लेट्स से अगर RBI का वहां पे कुछ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ रिजर्व है आपका IMF के साथ, तो इन रिटर्न दे अलॉट यू आपका SDR, ठीक है। एंड SDR आर जनरली पार्ट ऑफ आर रिजर्व सिस्टम, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है उनको अगर हम देखते हैं तो दिस जनरली इंक्लूड गोल्ड, फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग SDR, ठीक है। सो ये कॉमन करेंसी की तरह ट्रेड नहीं होता, बट हाँ, फॉर रिजर्व मेंटेनेंस वी यूज दिस वन, ठीक है। इट्स अ बंच ऑफ 5 करेंसीज, बकेट ऑफ 5 करेंसीज, जिसमें आपका डॉलर विच हैज मैक्सिमम वेटेज, देन यूरो, then आपका yuan, then we have pound and yen. So these are the 5 currencies and the last added currency was yuan, ठीक है। So SDR is a currency actively traded, no. SDR act as an artificial reserve asset representing a basket of major currency. SDR are only used by IMF for internal transaction and not held by central bank. Central bank they held for the reserve, ठीक है। SDR fluctuate in the value based solely on US dollar, no, it is linked with 5 major currencies, ठीक है। डॉलर का सबसे ज्यादा वेटेज है, सेकंड मोस्ट आपका यूरो का है, थर्ड मोस्ट आपका युआन का, बट
वी कैन नॉट से कि डॉलर से ही आपका ये ड्रिवन होगा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब फॉरेक्स स्वैप, ठीक है। व्हाट इज स्वैप, स्वैप समझते हैं ना, इट इज एक्सचेंज ऑफ टू डिफरेंट पोजीशन और एक्सचेंज ऑफ फिक्स रेट वर्सेस फ्लोटिंग रेट, ठीक है। जैसे मतलब लेट्स से आपका ये कैसा है, लेट्स से देयर इज अ पर्सन और कंपनी ए विच हैज टेकन लोन एट 10% पर एनम, ठीक है, इसने फिक्स रेट पे लोन लिया था। बी जिसने आपका फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया था, ठीक है। जैसे ये लिंक था आपका MCLR प्लस 1% आपका, ठीक है। एट दैट टाइम सपोज दैट MCLR इज एट 9%, तो अभी ये दोनों बराबर इंटरेस्ट दे रहे हैं। बट नाउ आफ्टर सम टाइम दे हैव सम एक्सपेक्टेशन, बी को लगता है कि आने वाले समय में एलसी आप कुछ सिचुएशन आफ्टर 1 ईयर बी एज्यूम की MCLR विल गो अप। अगर MCLR ऊपर जाएगा मतलब ये आपका 9 to 10% हो जाएगा, तो इसका लोन कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 11% हो जाएगा। ए एज्यूम की MCLR विल कम डाउन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे स्वैप पोजीशन विद ईच अदर, ठीक है। तो इसने बोला कि आप इसमें आ जाओ, मैं इसमें आ जाता हूँ, आप इसमें चले जाओ, ठीक है। दैट इज द वन, ठीक है। सो फिक्स, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ फिक्स रेट विद फ्लोटिंग रेट। अब स्वैप बहुत सारे टाइप के होते हैं, हमने डेरिवेटिव में पढ़े भी हैं, ठीक है। So simultaneous purchase and sale of currency pair in different amount. It can be simultaneous purchase and sale of currency pair for two different value date. No, for same value date. A transaction involve only a forward contract. No, derivative. No. A should be right answer for this one. ठीक है। अच्छा ओके, फॉर डिफरेंट वैल्यू डेट फॉरेक्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेम करेंसी। अच्छा ओके, हाँ दिस इज समथिंग, मतलब इन्होंने इसको कैसे से आपका लिया है, डिफरेंट सेटलमेंट डेट, हाँ तो ये ओके ठीक है। प्लीज डू करेक्ट दिस वन, हाँ माय बैड। परचेज ऑफ सेल ऑफ पेयर डिफरेंट अमाउंट, अच्छा ओके, इट वाज डिफरेंट अमाउंट यार, हाउ कैन आई डिड दिस, ठीक है। मतलब विद सेम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट होता तब सही होता है। आई डिड अ ब्लेंडर हियर, ठीक है। ये कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि अमाउंट सेम अमाउंट होना चाहिए था, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंट वैल्यू डेट आपका है, नॉट द डेट आपका, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, सॉरी गाइस। नेक्स्ट वन, if a foreign exchange transaction, a deal took place on 7th March, which was Friday, and settlement took place on 11th March. So the deal is known as, क्या बोलोगे आप इसको, देखो अब कैसे होगा आंसर, 7th आपका दैट इज T+0, ठीक है। 8th एंड 9th, ठीक है, 8 और 9 क्या है आपका, 8th एंड 9 आर बेसिकली हॉलीडे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हॉलीडे हैं आपके सैटरडे एंड संडे, ठीक है। देयर इज नो मार्केट इज क्लोज फॉर दीज डेज, मतलब इनका T+1 विल बी आपका 10th, T+1 विल बी 10th एंड T+2 विल बी आपका 11th। एंड इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से सेटलमेंट आपका 11th को हुआ है, T+2 है, तो क्या हो जाएगा आंसर, योर आंसर विल बी स्पॉट, ठीक है। सो व्हाट, सॉरी आपका इरेजर कहाँ है हमारा, ठीक है। सो योर आंसर विल बी स्पॉट, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका स्पॉट। कैश क्या होता है, T+0, ठीक है, अगर ये 7th को हुआ होता, अगर ये आपका T+1 मतलब अगर ये 10th को हुआ होता, स्पॉट इज T+2। अगर सेटलमेंट डेट यहाँ पे लिख देता वो 15th मार्च, ठीक है, तो 15 मार्च अगर लिखा होता तो ये आपका बियॉन्ड दिस है, तो हम इसको फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। सो इफ सेटलमेंट टुक प्लेस एनी डेट आफ्टर द सेटलमेंट डेट, सॉरी स्पॉट डेट, इट इज नोन एज फॉरवर्ड, ठीक है। तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन, तो क्या होता है आपका हेजिंग, ठीक है। हमारी कोई ओपन पोजीशन है, बाई पोजीशन है, मार्केट आपका मतलब जैसे लेट्स से हमने आपके बैंक ने XYZ कंपनी के 500 करोड़ के शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है, दे हैव अ ओपन पोजीशन एंड दे हैव अ बाय पोजीशन। अब देयर आर सम, लेट्स से आपके ट्रेजरी ने ये आपका पोजीशन लिया है, देयर आर सम फैक्टर्स इन मार्केट जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल मार्केट नीचे आने वाला है। हमने तो सोचा था, ये हमारी एनालिसिस सपोज दैट सही थी कि इस कंपनी के शेयर प्राइसेस विल गो अप इन द नियर फ्यूचर, बट अब मार्केट वाइज कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट आपका सरकार गिर गई या वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली मार्केट विल कम डाउन। अब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट टू डू, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेल, हम इसका क्या करेंगे, हम इसका फ्यूचर सेल कर देंगे, ठीक है, विद आपका सेम अमाउंट 500 करोड़ रुपीज विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपी, क्योंकि इसी को हम लिवरेज लेते हुए आपका करेंगे। सो दैट इज, दिस स्ट्रेटेजी इज जनरली नोन एज hedging। तो hedging क्या होता है आपका, टू मिनिमाइज योर लॉसेस और टू प्रोटेक्ट योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। इट हैज ड्यूअल इम्पैक्ट। इसके बाद
ना आपको 1 रुपए का फायदा होगा, ना आपको 1 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है, अंटिल अनलेस यू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वन पोजीशन, जो दो पोजीशन आपकी हैं उसमें से, ठीक है. So Axis Bank displays on a branch notice board $1 equal to this. So this is what kind of quotation? It is a direct quotation. ठीक है, क्या होता है direct quotation? A direct quotation is like when one unit of foreign currency is expressed in term of domestic currency. So this is a direct quotation. ठीक है, तो जब आपका फॉरेन की एक करेंसी का यूनिट आपका रूपी के टर्म में आपका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट, जैसे आपके स्क्रीन पे है, ठीक है. इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होगा आपका? व्हाट इज इनडायरेक्ट कोटेशन? ठीक है, इनडायरेक्ट कोटेशन व्हेन वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जैसे 1 रुपया इक्वल टू लिखा है आपका $0.0120, ठीक है. सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट कोटेशन, ठीक है. यूजुअली व्हाट यू विल सी, आपका जो रेट कोड होता है ना सिंस 1993 ऑनवर्ड्स, ठीक है, सो वी जनरली कोड दीज डायरेक्ट कोटेशन, ठीक है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है समझ में आया सबको? ठीक है. सो डायरेक्ट, so a quote is direct when one unit of one unit of foreign currency is expressed in term of domestic currency, ठीक है. इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका? मतलब डायरेक्ट कोटेशन आपका, इनडायरेक्ट कोटेशन क्या हो जाएगा? The quote is indirect when the price of one unit of domestic currency, 1 रुपया इक्वल टू दिस मच ऑफ डॉलर, जैसे हमने अभी बात किया, ठीक है. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. तो जैसे यहाँ पे आपके लिए थोड़ा ये डायरेक्ट कोटेशन है या आपका इनडायरेक्ट कोटेशन है फॉर रेफरेंस. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विद इफेक्टिव फ्रॉम 2nd of August 1993 ऑल एक्सचेंज रेट आर कोटेड इन डायरेक्ट मेथड. तो दैट इज द वन. नेक्स्ट वन, द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी दैट आर वैल्यूड अगेंस्ट थर्ड करेंसी. आपको बताया था कुछ देर पहले, तो इट इज कॉल्ड क्रॉस रेट, ठीक है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, आपका क्या था? डॉलर और आपका रूपी, दे आर डायरेक्टली कोटेड. डॉलर एंड करेंसी एक्स इज कोटेड, ठीक है. बट द प्रॉब्लम वाज कि हमें एक्स को कन्वर्ट करना था रूपी में, ठीक है. बट वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन दीज टू. तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट फ्रॉम दिस रूपी वी विल बाय डॉलर एंड सेम डॉलर वी विल डिस्पोज ऑफ अगेंस्ट द करेंसी एक्स. तो दैट इज जनरली नोन एज चेन रूल, ठीक है. सो दिस कन्वर्जन हैपन ऑन द बेसिस ऑफ चेन रूल एंड इट इज कॉल्ड क्रॉस रेट, ठीक है. याद रहेगा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, क्रॉस रेट आपका, ये हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा थे. ऐसे कई बार ऐसे ये आपकी उसमें नहीं रहता, बट हाँ आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स CIB में जरूर मिलेंगे, ठीक है. बैंक ऑफ इंडिया मुंबई बॉट 2,50,000 अगेंस्ट यूरो फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर फ्रैंकफर्ट. द प्राइस इज यूरो USD 1.250 ऑन 25th June. This delivery of this chartered and the settlement by this टेक प्लेस ऑन T+2, ठीक है. इस क्वेश्चन का मतलब सब कहानी है, और ऐसा बहुत होता है आपके IIBF ऐसा बहुत करता है, वो आपको पूरा कहानी सुना देगा, एक छोटे से पार्ट पे क्वेश्चन होगा. T+2 इज इक्वल टू स्पॉट. तो इनका जो ट्रेड है, दिस इज विच टाइप ऑफ ट्रेड? इट इज स्पॉट ट्रेड बिटवीन दीज टू एंटिटीज. John, a market participant noticed a difference between two dealers. आपका डीलर A quoting 75 per dollar and B is quoting $75.1, ठीक है. So John decide to take this advantages. उसने क्या किया? A से खरीदा, B को बेच दिया, $0.10 का फायदा हो गया, ठीक है. So अब ये स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं? Again, what will be your correct answer? It is known as an arbitrage, ठीक है. Buying in one market and selling in another market. Next one, guys. A type of contract with design. Okay, it's a repeat question. hedge कहते हैं इसको हम लोग आपका. Next one. The exchange rate of foreign currency is determined by in India. So आज के डेट में हम लोग क्या बोलेंगे? It is decided by the market forces. Market forces means demand and supply, right? चलो आगे बढ़ेंगे. Next one. एंड अब हाँ, तो ये तो आपके सारे थियोरटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, यहां तक का जर्नी जो था आपका. नाउ नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन अर्थमेटिक्स, द प्योर अर्थमेटिक्स विच यू आर गोइंग टू फेस इन योर CAIB एग्जामिनेशन. GIB में नहीं पूछा है, बट आपके बुक में दिया है तो हम उसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है. तो थोड़ा सा आपको अटेंशन, हाई लेवल का अटेंशन चाहिए होगा, ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे उनका एक बार रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है. So an inflow of 50,000 US dollar have been received by telegraphic transfer to credit the exporter's account representing an advance payment for export, ठीक है. This credit has been reflected in the Nostro statement received from the New York this, ठीक है. Question is,
what exchange rate would you quote to the customer if the market rate is this? ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपका एक दिया है, तो जैसे आपका एक एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से, हु इज गोइंग टू रिसीव पेमेंट, ठीक है। तो आप पहली चीज ना, अगर कभी भी एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, इफ इट इज एक्सपोर्ट, सो यू हैव टू कोट द बाय रेट। आपको कस्टमर को क्या रेट कोट करना है? बाय रेट। अगर आपका ये आपका इंपोर्ट होता, अगर ये आपका इंपोर्ट होता, सो वी आर गोइंग टू कोट आपका सेल रेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हाउ वी कैलकुलेट, जैसे ये कोटेशन है, इसमें बाय रेट क्या है, सेल रेट क्या है, अभी बताया था कुछ देर आपको, ठीक है। सो व्हाट इज बाय रेट इन दिस केस? 80 बाय रेट इज, और आपका आस्क रेट इज 85.10, ठीक है, एंड सेल रेट आपका बिड रेट इज आपका 85.15। सो व्हाट रेट यू आर गोइंग टू कोट टू योर कस्टमर? आपका आंसर होता है 85.10। एक बेसिक क्वेश्चन है, अभी आएगा, थोड़ा डिफिकल्टी बनाऊंगा, ठीक है। तो बाइंग रेट आपका ऐसे, थोड़ा सा इसको पढ़िए समझिए, ठीक है। CIB में हम इसको बहुत डिटेल में करते हैं, क्योंकि वहां पे इसके ऊपर केस स्टडी मिलती है। कैसे केस स्टडी मिलती है? आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, फॉरवर्ड या फ्यूचर रेट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। On September 15, a customer request for booking of a forward contract for export bill 2 lakh to be realized in the month of December, ठीक है। आप देखो यहाँ पे भी किसके ऊपर क्वेश्चन है? एक्सपोर्ट बिल के ऊपर है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बिल है आपका, तो मतलब आप क्या कोट करोगे? बाय रेट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। पहली चीज, $2 लाख आपका, जो कि कब रियलाइज होगा? दिसंबर मंथ में। अब जब भी ऐसा बिल्कुल ब्लैंक होगा ना, जैसे 15 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 दिसंबर अगर नहीं लिखा है, सो यू हैव टू अज्यूम द एक्सपोर्टर इज गोइंग टू रिसीव दैट पर्टिकुलर मनी ऑन 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दैट पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। अब गिवन जो आपका अभी का जो स्पॉट रेट है, दैट इज 82.4550, ठीक है, एंड फॉरवर्ड प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम इज आपका, ये आपको प्रीमियम दिए गए हैं, ठीक है, एंड मार्जिन आपको दिया गया है ये, जिसके हिसाब से यू हैव टू कोट द रेट टू योर आपका जो भी क्लाइंट है उसको, ठीक है। तो अगर हमें बाय रेट कोट करना, आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हाउ वी कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस आपका प्रीमियम माइनस मार्जिन, ठीक है। तो एक सिचुएशन आपका, एक इक्वेशन ये बनता है फॉरवर्ड रेट के केस में। अगर प्रीमियम में, अगर अगर ये डिस्काउंट में होता तो आप इसको माइनस डिस्काउंट करते इस तरीके से, ठीक है। इफ इन केस ऑफ बाय रेट, ठीक है, जब आप बाय करोगे, मतलब आपका जो एक्सपोर्ट बिल है उसके लिए अगर आप रेट कोट करोगे, सो यू विल यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। स्पॉट रेट जो दिया है, ठीक है, उसमें भी बाय वाला सेट, ठीक है। आपका प्रीमियम जो दिया है उस मंथ का जो प्रीमियम है, और मार्जिन, इनिशियल जो मार्जिन है वो आपको माइनस करना होगा। इन केस ऑफ सेल रेट, ठीक है, सेल मींस आपका इंपोर्ट बिल, अगर इंपोर्ट बिल होगा, सो हाउ यू विल कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट, आपका स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट प्लस मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन क्या होगा आपका? प्लस होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आप कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़ते हैं समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला, कैसे सॉल्व होगा ये? फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट, ठीक है, प्लस आपका मार्जिन, ठीक है, माइनस आपका प्रीमियम, सॉरी, प्लस आपका प्रीमियम, प्लस प्रीमियम माइनस मार्जिन, ठीक है, बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आपका फर्स्ट केसेस, हमारे पास स्पॉट रेट कितना है, तो अगर हम बाई साइड हैं, ठीक है, अगर हम लोग बाई साइड हैं तो स्पॉट रेट क्या पिक करेंगे? 84 तो स्पॉट रेट इज आपका 84.45, ठीक है, 84.45। देन हमें आपका ऐड करना है प्रीमियम, ठीक है। सो प्रीमियम, यू हैव टू ऐड प्रीमियम। अब प्रीमियम कितना है हमारा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, दिसंबर मंथ, 1 दिसंबर को हमें क्या करनी है? पेमेंट करनी है, ठीक है, मतलब बेसिकली वो रिसीव होगा। तो हमें जो प्रीमियम पिक करना होगा ना, कौन से मंथ से? नवंबर मंथ से। तो हमारे लिए जो काम का डेटा है इन तीनों में से, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, अगर 31 दिसंबर होता तो हम इसको पिक करते, ठीक है, अगर 1 नवंबर होता तो हम इसको पिक करते, 30 नवंबर होता तो भी आप इसको पिक करते। तो हमारे केस में दिसंबर 1 है, सो वी विल पिक दिस बाई साइड, ये सेल साइड है, ये आपका बाई साइड है, ठीक है।
तो हम पिक करेंगे आपका 0.25, तो टोटल कितना हो जाता है आपका 07.84। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, सो वी हैव टू माइनस सब्ट्रैक्ट क्या आपका मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन कितना दिया है आपको 0.05, ठीक है 0.05, तो ये कितना हो जाएगा आंसर आपका 84.65 इज द रेट which we are going to quote to our customer, ठीक है। तो this is the rate which you are going to quote to your customer, ठीक है। ऐसा आपका, बट आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं सर पकड़ो लास्ट में इसलिए मैंने लास्ट में रखा था ये क्वेश्चन आपके CIB के अंदर रहते हैं, ठीक है। बट मैं ना आपको हमेशा इसलिए बोलता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रीमियम और डिस्काउंट, उसका इम्पैक्ट, जो बेसिक मैंने आपको दूसरे या तीसरे क्वेश्चन के साथ समझाया था, ये कैलकुलेशन उसने आपके इसमें डाली है, बट विल नॉट आस्क दिस, ठीक है। तो एक बार इसको देखिएगा, जैसे इनका आंसर कितना आया है आपका 82.65, ठीक है। ये हमारा आंसर भी आया था 84.65, ये कैलकुलेशन, अच्छा यहाँ पे नंबर्स गलत ले लिया है, ठीक है। हिसाब लगाने में 84 कर दो इसको, ये भी आपका ऑटोमेटिकली 84 हो जाएगा, ठीक है। आपका 8470 जैसे, बाकी फिगर सेम है, बाकी वो गलती से 82 आपका हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड, सो दिस इज इट गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करें। अगर कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज, यू कैन आस्क योर एड नंबर ऑफ डाउट, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक देखो स्टार्ट कर लोगे ना, एंड तक पहुंच जाओगे। बट अगर इस डिलेमा में बैठे रहोगे यार कि अभी लाइक इतना सब पढ़ना है, कैसे होगा, ये होगा, फिर वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो बाय द माय टारगेट इज बाय द एंड ऑफ मार्च I'll fully complete with AFM as well as INIFS, ठीक है। AFM is about to end, हम लोग आपका मॉड्यूल सी के यूनिट नंबर 17-18 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव वेरी फ्यू सेशन 27 तक आपका, ठीक है, नॉट 27, ठीक है, जो भी आपका यूनिट है, ठीक है। सो देर आर 3 यूनिट्स रिमेनिंग इन मॉड्यूल सी, देन आपका 6 यूनिट इन मॉड्यूल डी, मतलब 9 डेज में मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। देन आई स्टार्ट विद द INIFS सिमिलर सीरीज, देन इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई टेक अ टाइम फॉर PPB एज वेल एज आपका आरबीडब्ल्यू के लिए। तो जो लास्ट 1 वीक है ना, उसमें ही अगर आप मुझे फॉलो करोगे, आई विल मेक श्योर कि यू विल स्कोर 65+ इजीली, ठीक है। इतना आसान पेपर होता है, टेंशन नहीं लेना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। डू शेयर योर फीडबैक गाइस, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट फील फ्री टू आस्क, ओके। सो दिस इज इट, पढ़ते रहो, ठीक है। सो आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम 7 PM। बाय बाय, टेक केयर ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।